ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇਰੀਅਰ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੋਟ ਈ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੱਡ ਹਾਊਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਊ ਕ੍ਰੀਟ ਹਾਊਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਬਿੰਗ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੋਟ ਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਊ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੁੱਤੇ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਈਏ ਸਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਾ ਨਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗਿਆਨ ਵਧਾ ਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸਾਇੰਸ ਕਲਾਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਓਪੀਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੋਣੀ ਬੰਦ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਆਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਗੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਮੋਗੇ ਉਹਨਾਂ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਹਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਨਾ ਸੱਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਇੱਕੇ ਦਮ ਇਨਸਟੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਸਵਸਥ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਵਸਥ ਜੀਵਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨ, 5000 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਰਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਪਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਸੰਸਥਾ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਣ 'ਚ, ਜੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟਿਸ ਬਣੀਆਂ, ਲਾਸਟ ਨਿਊਰੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਲਕਾਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਸਿਡਿਕ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਧਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੋਂ ਵੀ।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਦੱਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਬੇਬੇ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਧਰਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਤੇ ਕੌਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਧਰਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕੌਡੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਧਰਨ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ, 3 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਸੇਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ। इधर ऑफ कर दो, ऑफ कर। क्या टॉपिक चल रहा था? ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਚੱਕਰ, 7 ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ क्या सिखा दिया सूर्धाधार? ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ 7 ਦਿਖਾਏ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਚਲੋ ਆगे चक्कर ही बताया कि आज चक्कर बताए यूनिवर्सिटी की काम पर थोड़ी ਕਲਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ बॉडी चक्करों से ही शुरू करते हैं। सबसे नीचे वाला पहला चक्र है, क्या कहते हैं उसको? रोग रोग चक्र। हिंदी में हाँ जी हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़ गोलाकार ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਈਏ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। गोलाकार चक्र। गोलाकार चक्र, गोलाकार यानी गोलाकार चक्र। सर मूलाधार, मूलाधार, मूल मतलब पर्टिकुलर बीमारी नहीं, कोई भी बीमारी है जिसको आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या किया जाए, क्या मतलब किया जा सकता है, तो आप 6 सेकंड की कुंडली 6 बार 1.5 मिनट के गैप में देंगे। और अगर हो सके तो उनके घर वालों को ये सिखाया जा सकता है। ऐसा पेशेंट जिसका कोई उम्मीद नहीं है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ आपके ना बाजार में एक लिवर सिरोसिस के पेशेंट थे, कोशिका के बाद इसी रोड पे थोड़ा आगे जाके गैप नहीं आता थोड़ा जी उसी जगह का होगा। दलजीत सिंह नाम है, 2014 की बात, लिवर फेल हो गया था और DMC वालों ने भी बोला कि भाई लिवर चेंज करना पड़ेगा, और उनके पास कोई चारा नहीं था। और लिवर चेंज करने का मतलब कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपये का खर्चा, परिवार खत्म हो जाता, और कुछ बिक जाना था। उनकी बैगों की दुकान में मिला। उनके भाई मेरे पास आए कि आप चल के कुछ भी जो आपको समझ में आता है आप करिए, हमें तो पता है कि इसने जाना है, और हम ये नहीं चाहते कि घर में रख के उसको ये लगे कि ये मेरे वास्ते कुछ कर देगा। मैंने कुछ अपने सीनियर से सलाह मशवरा किया, उसके बाद मैं आ गया, ट्रीटमेंट शुरू कर लिया। एक बंदा मेरे कहने पे उन्होंने हायर किया, हर 2 घंटे हर 3 घंटे का ट्रीटमेंट मैंने कुछ सिखाया उनको देने के लिए। और मेन पॉइंट ये रखा, 6 सेकंड की कुंडली 6 बार 1.5 मिनट के गैप में। एक बार मैं करके जाता था और दोपहर में फिर शाम को, ये कंटिन्यू चलता है उनका। अब उनका वजन जैसे अपनी मंजिल नहीं होती जो तलवार वाली, उसकी चौड़ाई होती लगभग 3 फुट या 3.5 फुट होती। वो ना उस मंजिल पे अकेले लेट नहीं पाते थे, इतना अडीमा था, शरीर इतना फैल गया था। और जो अपने स्कॉर्टम होते हैं इतने बड़े बड़े, टांगे ऐसे ऐसे हो गई थी, मतलब वो नज़दीक नहीं आते थे, इतना पानी भर गया शरीर में सर। तो उठना तो क्या, वो बेड पे थे। और सिर्फ मतलब और भी ट्रीटमेंट है, पर ये बेसिकली मैंने ये अनुभव किया कि इस ट्रीटमेंट ने उनको उनकी लाइफ सेव कर दी। ये सभी मौतों के जितना भी शरीर में सिस्टम बिगड़ गया, अकेले ये पॉइंट ने बहुत अच्छा हेल्प दिया हमें। जब मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया पहले दिन तो उनका 24 घंटे में 100 ml बाथरूम आता था, यूरो बैग लगा हुआ था। और जैसे जैसे ट्रीटमेंट देते गए
3 दिन 5 दिन 10 दिन यूरिन बढ़ता गया। 1.25 लीटर तक 24 घंटे में बाथरूम आना शुरू हुआ। और जब इतना बाथरूम आने लग गया तो शरीर का पानी वगैरह निकल गया और वजन कम हो गया, जो चौड़ाई वगैरह थी ये सारी वो घट गई और वो अपने आप उठ के गली में चलना सैर वगैरह करना उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे ये क्रॉनिकली को जैसा कि दूसरे को भी इसी वजह से किसी को भी, मतलब जैसे सेंटर पर कोई भी पेशेंट आता है तो ये उसको दे सकते हैं। किसी को अब कहीं भी किसी को भी दिया जाता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। दूसरा आने जरूरत कुछ इन्फेक्शन हो गया, चाहे वो गले का हो या लंग्स का हो, लिवर का हो, बॉडी में TLC बढ़ गया, आपको समझ नहीं आ रहा, सिर्फ ये 6 सेकंड की कुंडली देते जाए। सवेरे शाम दोपहर शाम। हाँ 3 टाइम। कभी आजमा के देखिए, किसी बच्चे को जुकाम हो जाता है, खांसी लग जाती है, सिर्फ ये दीजिए और कुछ नहीं करना। मुझे याद आ रहा है छोटे थे जब हम, तो हमारी दादी का जैसे लूज मोशन लग गया तो वो कहते थे बेटा अंगूठा ना, मैं वो पर वो सीधे लेटते थे तो कहते थे अंगूठे से ना दबाव डालना, तो हम करते थे। तो अब भूल गए हम, जब उनकी डेथ हो गई तो हम कहते मतलब अब हम चीज इनको मानते नहीं है कि इससे क्या होगा। ये छाती से बदले दो सराहने जरूरी है। पेशेंट को उल्टा लिटाना है, ऊपर वाला धड़ थोड़ा सा ऊंचा रखें। ऊपर बच्चा है तो एक सिरा में रखेंगे, होते हैं। ऐसे 3 बार देंगे, हाँ जी। फिर 20 सेकंड के लिए 3 बार देंगे। मतलब जेड़ा गैप हो 1.5 मिनट दे रखना है। नहीं, इससे पहले 6 बार पहले 6 बार करके बाद जो 6 सेकंड का 6 बार है उस तो बाद शुरू वो करना। ये अलग चीज और है, अलग चीज है, वो पूरा हो गया। थेरेपी होगी ना कि डोज होगी पहले। ये उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग चीज है। अच्छा वो ब्रेन में कई बार आपने पेशेंट सुने होंगे जिनके ब्रेन में कैल्सिफिकेशन हो जाती है, आपको नहीं समझ आ रहा कि उसको कैसे रिमूव करना है, क्या दें क्या करें। आप घर वालों को, पेशेंट को ठीक करना है तो आप 6 सेकंड की कुंडली 6 बार उनको सिखा दीजिए। तो दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जितना उनको लगता है टाइम देते जाए, कैल्सिफिकेशन रिमूव हो जाती है। इसी के पॉइंट्स जो ਤੁਸੀਂ बोल रहे हो वर्ड की ਹੁੰਦਾ ब्रेन ਵਿੱਚ ब्रेन में कुछ हिस्सों में ना कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। सर एक पेशेंट था मुझे माथा में तो उनको लूज मोशन की प्रॉब्लम है। मेडिसिन तो नहीं यूज कर रहे थे, पर मुझे मुझे काट चुकी है जो बता रहा हूं। लूज मोशन है, दर्द भी होता है। हां जी सर। वो आपको बात करना इसको बाद में कर लेंगे। हाँ बात करना वो तेरे तो लंबी होते हैं। ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया 6 सेकंड 6 टाइम, हाँ जी और ये 6 सेकंड 3 बार, 13 सेकंड 3 बार और 20 सेकंड 3 बार। 3 बार। ये सभी मिला के एक फुल एंटीबायोटिक है। ओके डोज होगी। हाँ, एक पूरा डोज हो गया। अब किसी को फ्लू हो गया, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जी किसी को इन्फ्लामेटरी डिजीज है कुछ भी, हाँ जी तो उस जगह पे तीनों जगहों पे ये अप्लाई किया जा सकता है। ओके दोबारा होगा किन केसेस में जहाँ पे आपको लगता है कि इनको कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है, वहाँ पे कुंडली 6 सेकंड 13 सेकंड और 20 सेकंड 3 बार ये दिया जा सकता है। सर एंटीबायोटिक का काम करेगा ना किसी? हाँ, ये एंटीबायोटिक है। जहाँ आपको कंफ्यूजन है कि ये इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है, वहाँ पे जैसे हमारा इन्फेक्शन में हम थाइमस या लिम्फ ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, और इन्फ्लामेशन हो गया तो वहाँ पे थाइमस और लिम्फ ग्लैंड काम नहीं करेंगे, वहाँ पे काम करेगा एड्रिनल ग्लैंड। इन्फेक्शन बीमारी की पहली स्टेज है। जब वो बीमारी बिगड़ जाती है, कुछ बीमारियां हैं जो 15 दिन 17 दिन या 40 दिन के बाद कन्वर्ट हो जाती है इन्फ्लामेशन में। तो उसके लिए बॉडी का अपना सिस्टम है एड्रिनल ग्लैंड का, तो फिर वो थाइमस और लिम्फ उस पर काम नहीं करेंगे, फिर काम करेगा एड्रिनल ग्लैंड, जिसको स्टीरॉयड देते हैं। जो क्रॉनिक बीमारियां को देते हैं ना स्टीरॉयड, तो वो एड्रिनल ग्लैंड का काम है। जो स्टीरॉयड वो बाहर से दिया जाता है, बॉडी खुद बनाती है। वो एक अलग विषय है, उस पर किसी और दिन रखेंगे। वो सूजन को घटाने का, लाली इन्फ्लेमेशन जो होता है उसको कम करने का काम करती है। जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है,
वहाँ पे इसको बेझिझक दिया जाएगा। ओके वो चाहे इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, वो खुद ही उसको देखेगा और घूम के उसको ठीक करेगा। एंटीबॉडी तैयार करता है ये सारा। ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਡੀ ਨਾਲ ਪੈਰ बैठो अब। दोनों पैरों के बीच में खड़े हो जाएंगे, ਸਿੱਧੇ ਕਰਨਾ हाथ का सहारा लेंगे ਹਾਂ और ये भी बीच में। ਓਕੇ ਠੀਕ जो टेल बोन है उसके ऊपर दबाव नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना। इसीलिए हाथ का पूरा सहारा, आपका वजन आपके हाथ पे ही होगा। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਦੇਖਣਾ हाँ, कोई ना कोई वजन संभालने के लिए। अगर आपका बैलेंस बिगड़ गया और टेल बोन पे दबाव आ गया तो ਖਰਾਕਾ टूट जाएगा। इसलिए पैर रखने से पहले पूरा संभाल के, बैलेंस बनाना। हाँ, बैलेंस बना के, और टेल बोन से नीचे ਨੀਚੇ ऐसे नहीं रखेंगे पैर, ऐसे एड़ी रखेंगे। ਠੀਕ ਹੈ उसके भी समझ में नहीं आ रहा तो दोनों पैरों के बीच में बैठ जाइए, पैर पकड़ लीजिए, फिर आराम से बैठिए। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ये ज़्यादा ईजी है। ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਬੈਕ ਹੈ ये है 20 सेकंड तक। ਹਾਂਜੀ इसके बाद एक 40 सेकंड की कुंडली होती है, जो 40 सेकंड कंटिन्यू उसको प्रेशर दिया जाता है। 40 सेकंड का मतलब ये आप ब्रेन के पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहे हैं। ਓਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ वो अलग, इसका काम अलग है। नहीं है यही है कुंडली कुंडली यही है, पॉइंट यही है, Point. सेकंड बढ़ जाते हैं। सेकंड वर्ड ठीक है उसको कहाँ दिया जाता है? नींद अगर डिस्टर्ब है ओके और बॉडी में एक सिस्टम चलता है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। चालीस सेकंड पिनियल ग्लैंड के लिए दिया जाता है। शरीर का मालिक है पिनियल ग्लैंड। मीन पिनियल मीन पिनियल सर रिपीट करो कुंडली 40 सेकंड फॉर पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड के जैसे मान लीजिए एक पॉइंट के लिए मैंने एक बीमारी बताई, तो आप उसको वहीं नहीं रोकना है। वो पिनियल ग्लैंड क्या क्या काम करता है आप उसको किताबों में ढूंढिए, पढ़िए, और वो सभी काम उससे ले सकते हैं 40 सेकंड की कुंडली से। ओके पिनियल ग्लैंड क्या करता है? कुछ रिसर्च ऐसी बताती हैं कि पिनियल ग्लैंड, जैसे बच्चा जब जवान होता है आफ्टर प्यूबर्टी वो डिसॉल्व हो जाता है, तो ऐसा है नहीं। वो कहते हैं कि वो डिसॉल्व हो जाता है। तो अब अगर वो कहते हैं कि डिसॉल्व हो जाता है, तो जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है बिना पिनियल के अधूरा है। वो खुद ही कहते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, तो वो मैकेनिज्म में जो मैसेज लेने और देने का काम होता है वो शुरू होता है ऊपर से। तो अगर ऊपर वाले को मैसेज मिला ही नहीं तो हाइपोथैलेमस को कैसे मिलेगा, फिर पिट्यूटरी को कैसे मिलेगा, थायराइड को कैसे मिलेगा? ऑर्डर ऊपर से आते हैं, पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो जितने भी हार्मोन बनते हैं शुरुआत होती है हाइपोथैलेमस से। अब हाइपोथैलेमस क्यों बनाएगा? वो डायरेक्ट फीडबैक नहीं लेता, पिनियल ग्लैंड में फीडबैक लेना है और उसने हाइपोथैलेमस को बोलना है। हाइपोथैलेमस आके रिलीजिंग हार्मोन देगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन देता है थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड आगे सारे काम देखता है। तो बहुत अहम कड़ी है पिनियल ग्लैंड का। और इसीलिए जैसे न्यूरोथेरेपी कहती है कि आपको सभी को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो पूरी चेन है कि पहले आपने कुंडली दिया, फिर यहाँ पे 6 मेडुला दिया है ना हमारे मेडुला में, तो 6 मेडुला दिया हाइपोथैलेमस के लिए। उसके नीचे है थायराइड पी, वो पॉइंट यहाँ आपको जो पैरा बताया था ना साइड, तो राइट साइड में पैरा है और लेफ्ट साइड में थायराइड पी का पॉइंट है जो उसके लिए है, पिट्यूटरी के लिए। फिर उसके नीचे यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है तो थायराइड का, तो ये आपने पूरा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया। अब शरीर में जैसे किसी की ग्रोथ रुकी हुई है, हाइट नहीं बढ़ गई,
तो आपने ये पूरा चेन एक बार स्टिमुलेट किया थायराइड ग्लैंड के साथ, और बाद में चाहे आप कुछ भी ना करो तो शरीर में क्या कमी है, कौन सा टिश्यू अधूरा रह गया है या कौन सा टिश्यू फ्लूइड ठीक से नहीं हो रहा, नहीं चल रहा सिस्टम को, वो नेगेटिव फीडबैक खुद ढूंढेगा और उसको अपने हिसाब से ठीक करेगा। इसी फार्मूले को गुरुजी ने बाद में बोला था कि ये ग्रोथ हार्मोन का फार्मूला है। तो किसी को हाइट का ट्रीटमेंट देते हैं तो जैसे आपको सिर्फ बताया था मैंने, नॉर्मल है नॉर्मल, पेट के सिस्टम को ठीक करो और उसके साथ कुछ पॉइंट हैं स्पाइन को एक्टिवेट करने के लिए, तो हाइट बढ़ने लग जाती है। कुछ भी मत करिए, आप सिर्फ ये करिए, कुंडली का पॉइंट करिए। सभी को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं, कुंडली एक्टिवेट होगा तो उसने अपने नीचे वालों को एक्टिवेट करना ही है 40 सेकंड के पॉइंट में। तो ये बहुत अहम है। और कुंडली के पीनियल ग्लैंड के बारे में आपने पढ़ना है, चाहे गूगल से या किताबों से। पीनियल ग्लैंड क्या है, क्या क्या काम करता है। जैसे नींद के लिए सेरोटोनिन नाम का हार्मोन बनता है, तो सेरोटोनिन बनने के लिए जो प्रीकर्सर है, उसका जो कच्चा माल है ट्रिप्टोफैन, एक अपना क्या बोलते हैं एमिनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। अगर वो आपने उसको कच्चा माल दिया, जैसे केले के छिलके में होता वो दे दिया, कुछ और भी फूड है वो दे दिया, साथ में कुंडली दे दी, तो जिसको नींद नहीं आ रही उसको नींद कैसे ना आएगी। उसको कच्चा माल आपने खिला दिया और कुंडली को एक्टिवेट किया सेरोटोनिन बनाने के लिए, सेरोटोनिन बन जाएगा, उसको नींद आएगी। तो फिर भी नहीं आती है, एक और फार्मूला है उसमें प्रॉपर। जैसे कोई भी हार्मोन या केमिकल जो ब्रेन में बन रहा है, तो जितना ब्रेन बनाता है उसका कुछ हिस्सा हमारा गट सिस्टम भी बनाता है। ये भी एक नर्वस सिस्टम है, सुना? जो न्यूरॉन है ब्रेन में, मुझे लगा मैं ज़्यादा डीप जा रहा हूँ। कोई नहीं, आपको कुंडली कर रखे। हाँ जी, तो फिर कुंडली भी निकल जानी मतलब नींद के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। किसी को नींद नहीं आ रही और मन बड़ा विचलित है, उसके लिए उसको काम डाउन करने के लिए कुंडली का सिस्टम दिया जा सकता है। सर फिर आएगा मतलब 40 सेकंड वाला या 40 सेकंड कुंडली पीनियल ग्लैंड के लिए 40 सेकंड होने जेड़ा सी 40 सेकंड ਦਾ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ 13 ਦਾ ਫਿਰ वो एंटीबायोटिक है। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇਣਾ। ये अलग चीज है। ओके, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਣਾ? 40 सेकंड एक बार। कुछ मामलों में 2 बार 4 बार भी दे सकते हैं, पर इससे कई बार बीपी डाउन हो जाता है। सर जिवें कई बार कोई पेशेंट आंदा ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਸਕਦੇ हैं। या पेट में समस्या होती है। हाँ, ब्रेक वाले होते हैं। इन्फेक्शन की बीमारी है, आपको पता लग गया कि इसकी बॉडी में कोई टेंसिडेंसी बढ़ रहा है या कुछ ऐसा इन्फ्लामेशन है जहाँ आपको समझ नहीं आ रही, रिजल्ट नहीं आ रही, तो आप इसको बेझिझक दीजिए। और भी है कुछ नॉनवेज में जाएँ तो और भी चीज़ें हैं, मछलियों के साथ कुछ गूगल में मारिएगा ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, बहुत सारे फूड हैं। बनाना इसलिए याद रहता है क्योंकि आम मिल जाता है। आम ज्यादा सर्जरी 40 सेकंड दी कुंडली या पीनियल ग्लैंड से सारे काम कर दी। पीनियल ग्लैंड जो काम करता है उससे सारी सर कद्दू के बीज सुनिया ना जिन्होंने नींद नहीं आती। हाँ, उसमें भी होता है कद्दू के बीज ट्रिप्टोफैन दे सकते हैं। ਅਸੀਂ ਕद्दू के बीज ਨੂੰ ਭਿਗੋ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਖਾਣ ਚ ਕਈ ਵਾਰ। उसको थोड़ा सा रोस्ट करें, देसी घी डाल कर रोस्ट करके, ज़्यादा नहीं करना, रोस्ट करके उसको कांच के बर्तन में भर के रखें। चलो चलो अभी आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे ये जरा कुंडली का। बैठ के ही करें आपस में, लेडीज अपना अपना अलग कमरे में लग जाए, जेंट्स उधर चले जाए।
तो आपस में उसको करें। चलो कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है उसके बाद फिर अगला स्टेप करते हैं। टेल बोन, इसके टेल बोन में पहले से दर्द है। लंबर रीजन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, बल्ज है, डिफ्यूज बल्ज है या डिस्क थिन है, ऐसे पेशेंट जो क्रॉनिक पेशेंट हैं लंबर रीजन के, उनको कुंडली का पॉइंट अगर ज़रूरत पड़ती है तो 6 सेकंड वाला दिया जा सकता है, अदरवाइज बचना है। ऐसे पेशेंट को देने से सर पीरियड्स से फीमेल को दे सकते हैं? पीरियड्स में नहीं देना, पीरियड्स में किसी को नहीं देना। जो लो बीपी है पेशेंट का, ऐसे पेशेंट को कुंडली नहीं दिया जाता। लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर बीपी में बढ़िया ਉਹਦੇ ਚ देवांगे ठीक हो जाएगा, ਇਹਦਾ लॉजिक नहीं है। जिसका बीपी लो है उसको कुंडली देने से बीपी और लो होता है। ये तो किसी का बीपी हाई आपने को ले आ गया पर्टिकुलर, उनको नहीं देना, हाई नहीं देना, लो नहीं हाई वाले का सब्जेक्ट दूसरा हो गया, ट्रीटमेंट दूसरा हो गया। लो में इसको नहीं दिया जाएगा, इसका प्रिकॉशन नहीं। नॉर्मल में दिया जाएगा। लो मीन्स कि जो पेशेंट लंबे टाइम से कह रहा है कि मेरा बीपी लो ही रहता है, बल्ज नींद आती रहती है, सुस्ती रहती है, तो ऐसे पेशेंट को जब देंगे तो उसका बीपी और डाउन होगा, तो उसको नहीं देना। और 40 सेकंड वाली कुंडली, जैसे कुछ बच्चे हैं फीड्स वगैरह की प्रॉब्लम, उनको फिट्स पड़ रहा है, तो उनको भी नहीं देना। सिर्फ बच्चों ਨੂੰ ਜਾਂ मतलब किसी ਨੂੰ भी ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਟਸ ਹੈ, नहीं अडल्ट तो उन्होंने दे सकते कौन नहीं दे। ये 40 सेकंड वाला 40 मिनट 40 सेकंड वाला नहीं देना, दूसरा दूसरा दे सकते नहीं देना। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ 6 ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੌਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ वो दे सकते 6 वाला किसी को भी दे सकते हैं। 6 वाला तो किसी को भी कोई कहता सिर भारी है या सिर में दर्द है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कोई खराबी नहीं करता। 6 सेकंड वाला किसी को भी दिया है। ਸਰ ਜਿਹਦਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ पेशेंट से किसी प्रॉब्लम बीपी तो लो नहीं देना, अक्सर कहीं ना होता ना बीपी लो रहना काम ऐसे पेशेंट को नहीं देंगे। जिनको लेडीज में
ज़्यादा चल रहे हैं उस टाइम पे नहीं देना है। दूसरा जिनने फाइब्रोइड बन गया उसको कोई काम नहीं कोई है, तरह नहीं दे सकते। उसको दे सकते हैं। तो अभी अगला क्लास किसे मिलना शुरू कर देता कि और कुछ हाँ जी कुछ हाँ जी योगा टाइगर कुछ योगा टाइम देता रहेगा, फिर 10 मिनट दो तो शुरू कर दो। एक तो नफ्स के द्वारा और लंग्स दबाई नर्व्स उसमें नर्व्स दो तरह की हैं, एक है स्पाइनल नर्व, और दूसरी है क्रैनियल नर्व। स्पाइनल और दूसरी क्रैनियल। क्रैनियल क्रैनियल CRANIL क्रैनियल। ये कुदरत का इतना अद्भुत सिस्टम है, जितने जरूरी अंग हैं उन सभी का कनेक्शन डायरेक्ट ब्रेन के साथ क्रैनियल नर्व के द्वारा है, और जितने गैर जरूरी तो कुछ भी नहीं है, पर जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है उनको स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, या उन दोनों अंगों को दोनों नर्व्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब जैसे हार्ट है तो T1 और T2 स्पाइनल नर्व हार्ट को आते हैं, और क्रैनियल नंबर 10 नंबर की क्रैनियल नर्व वैगस नर्व हार्ट को आती है। वो अकेली नर्व 10 नंबर की है जो अपना इस एसोफेगस, स्टमक, सारे इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, इस सभी को स्टिमुलेशन देती है। किसी को उल्टी लगती है, उल्टी क्यों आएगी, इसकी सूचना वैगस नर्व ने ब्रेन को देनी है कि इसके कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ खाली है जो शरीर के सिस्टम को बिगाड़ सकता है। तो ब्रेन वैगस नर्व को एक्टिवेट और दोबारा क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर देता है कि ये चीज़ हार्मफुल है तो इसको निकालो बाहर। और वैगस नर्व ने स्टमक को, अपने डायाफ्राम को, सारे पेट के मसल्स को एकदम से सिकोड़ के ऊपर की तरफ खींचना है, और वो रिफ्लेक्शन के द्वारा बाहर निकालने की कोशिश करेगा। खांसी भी जैसे उल्टी बीमारी नहीं है, शरीर का अपना बचाव। खांसी जैसे उल्टी बीमारी नहीं है तो शरीर अपना बचाव कर रहा है, ऐसे ही खांसी बीमारी नहीं है कोई। जब कोई हमारे एयरवेज के अंदर कोई ऐसी चीज़ चली जाती है, ऐसा कोई पार्टिकल है, ऐसी कोई बैक्टीरिया या वायरस कोई एंटर कर जाता है जो सिस्टम को नुकसान कर सकता है, तो उस सिस्टम ब्रेन को मैसेज दे देता है कि भाई ऐसी कोई चीज़ आई है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम लंग्स को और डायाफ्राम को ऑर्डर देता है कि आप उसको बाहर निकालो। अब वो बार बार रिफ्लेक्शन दे के उसको खांसी के द्वारा बाहर निकालने की, उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है। छींक आती है, वो भी उसी का एक हिस्सा है। फूड पाइप और एयर पाइप के बीच में कोई तालमेल गड़बड़ हो गई और वो कुछ पानी की ड्रॉप्स या कुछ खाने वाली चीज़ एयर पाइप में चली गई तो छींक आ जाएगी आपको उसको बाहर निकालने के लिए। और वो फोर्स होती है कि वो अंदर जा ही नहीं सकता, अंदर जाएगा उतना तेज फोर्स है उसका, उसको निकाल के उसने बाहर फेंकना है। ये सभी जो दो नर्व्स मैंने बताई, ये नर्व्स के द्वारा ब्रेन करवाता है। अब इनको आप कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं, या इनका काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, कोई गड़बड़ी आ गई, आप उसको कैसे ब्रेन को उसके साथ उसका कनेक्शन मजबूत कर सकते हैं। जो स्पाइनल नर्व है उसके सारे जो स्पाइनल के 31 जोड़े नाड़ियाँ हैं दोनों तरफ निकल गई हैं, तो उसको एक अलग सिस्टम के द्वारा स्टिमुलेट करते हैं हम। स्पाइन के ऊपर ऐसा 20 बार रब करके, या उसके साइड में 20 बार ऊपर नीचे जाके, या उसके साइड से नीचे आके फिर दूसरे तरफ से ऊपर जाके, उसका
सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, किस दिशा में चलता है उसी दिशा में जाके उसको भी चर्चा करते हैं। और क्रैनियल नर्व की चर्चा करते हैं। जो क्रैनियल नर्व है, एक तो हम यहाँ से एस्टिमेट करते हैं, एक नंबर की क्रैनियल नर्व नेजल कैविटी को आती है, किसी की स्मेल नहीं आ रही है या नाक से पानी आ रहा है बार बार, खासकर स्मेल के लिए ही, किसी को स्मेल नहीं आ रही है और आप उसी टाइम ठीक करना चाहते हैं, सिर्फ यहाँ पे ऐसे 2 बार, 1 2, फिर दूसरी तरफ 1 2, इतना करने से आपने क्रैनियल नर्व 1 और फैक्ट्री नाम है उसका, आपने उसको स्टिमुलेट कर दिया। ये 3 बार करने से ही आप जिसको स्मेल नहीं आ रही है उसी टाइम उसको साबुन वगैरह दीजिए, सुनेगा स्मेल आ जाएगी। कुछ क्रॉनिक हो सकती हैं जिसमें अगर उन्होंने कोई लंबे टाइम तक कोई स्टीरॉइड वगैरह खाया है तो हो सकता है तत्काल ना आए, अदरवाइज स्मेल आ जाती है उसी टाइम। दूसरा, ये मेडुला का पॉइंट है। हाँ, क्रैनियल नंबर 1 ऑल्फैक्टरी और स्मेल। कैसे स्टिमुलेट करेंगे? 1 मेडुला से। मेडुला का पूरा टॉपिक एक दिन का पूरा लेक्चर ही होगा। दो नंबर है तो जितने मेडुला है उसका डबल आपने इसको करना है। जैसे 1 नंबर की क्रैनियल के लिए 2 बार हमने रब किया, तो 2 नंबर वाली के लिए 4 बार करेंगे, 3 नंबर वाली के लिए 6 बार करेंगे। सभी का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो जिनके एक्सपीरियंस लिए हुए हैं और जो थ्योरी हमारी कहती है न्यूरोथेरेपी की, वो ये कहती है कि जितने क्रैनियल नर्व हैं उन सभी को आप मेडुला के द्वारा स्टिमुलेट कर सकते हैं। 10 नंबर का वो तो अक्सर ही हमें कहीं गाड़ी में जा रहे हैं और किसी को वॉमिटिंग की फुली फीलिंग आ रही है, तो आप उसको 10 मिनट दे दें, वो काम पे होगा। 3 नंबर है डबल, हाँ 10 बार, 10 में मिला मतलब 20 बार आपने ये करना। हाँ, जैसे ये ना कान का एरिया है, कान के पीछे से 1 ऐसे करके 20 बार। ये टाइट मसल है बगल में, दोनों साइड। पहले लेफ्ट साइड। अरे इकट्ठे नहीं कर सकते, अलग अलग करने। अलग पहले लेफ्ट साइड करेंगे फिर राइट साइड। और ये एक बार करके ही उल्टी कंट्रोल हो जाती है। कहीं भी जाइए आप आजमाइए, कभी किसी को उल्टी आ रही है, गाड़ी में बैठा है, सिर घूम रहा है, उसको मेडुला के लिए ना सफर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तेल चढ़ जाना, वहाँ वो दिक्कत होती है, अच्छे रिजल्ट 10 बार ये 20 मेडुला 10 मेडुला दे दिया। अगर फिर भी उसको लग रहा है कि आ रहा है ये, तो उसको ये देंगे 30 बार देंगे। 20 बार रेगुलर दे दिया, उसको 5 मिनट तक वेट करिए। अगर वो रिलैक्स हो गया तो ठीक है, नहीं होता है तो आप 30 बार करेंगे। सर बिना क्रैप के इंस्टेंट ही देते रहना है, ऐसे नहीं करेंगे। दस दोनों काउंट करके भी होना दोनों। ना फर्क पवे फिर 15-15 कर देना दोनों। 20 हाँ जी, एक तरफ 20, दूसरी तरफ 20। सब लोग सुन लीजिए ध्यान से। हाँ जी। ये कर दिया और 5 मिनट में अगर वो रिलैक्स नहीं हुआ, सर 30 इधर। हाँ, तो फिर थोड़ा सा गैप रखेंगे और उसको एसिटिल कोलाइन का पॉइंट है ये 15 मेडुला, यानी कि 30 बार लेफ्ट साइड, फिर 30 बार राइट साइड, ये करेंगे। उसके बाद फिर 10 मिनट दोबारा देंगे, फिर 20 दोनों तरफ। उससे क्या है, एसिटिल कोलाइन मैंने बताया था क्लास में कि जिस जगह पे न्यूरॉन्स आपस में मैसेज देना और लेना होता है, तो वो साइनेप्स के बीच में उनका मैसेज लेने और देने का काम अगर प्रभावित हुआ है किसी वजह से, तो एसिटिल कोलाइन की कमी हो जाती है उस जगह पे, मैसेज लेना और देना। तो उसके लिए पहले आप एसिटिल कोलाइन बनाइए, 15 मिनट दीजिए, बाद में 10 मिनट दीजिए, तो उसका इफेक्ट आ जाता है उसमें कनेक्शन जोड़ता। और उसके बाद जैसे 12 क्रैनियल नर्व है, तो सभी का अलग अलग फंक्शन पढ़ के आप उसको उसमें कनेक्ट कर लें कि कौन सी नर्व क्या काम करती है और उससे हम अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं मेडुला के साथ। और ये सब भी नहीं करना है तो नेकलेस का पॉइंट है।
जो अभी किया था मैडम के ऊपर, ये वाला 3 यानी वो सारे जो इनको क्लॉकवाइज दिया ना, या प्रेशर दे दीजिए। इससे 12 के 12 क्रैनियल नर्व स्टिमुलेट होते हैं। किसी को बड़ी सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है और कुछ काम करने बैठे हैं, जी नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, तो उसको जगाने के लिए, मीन्स उसके जो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको जगाने के लिए आप सिर्फ नेकलेस का पॉइंट दीजिए, उसी में ऐसा लगेगा शरीर में एनर्जी आ रही है। जैसे आपको ना ब्रेन नींद सी हो रही है, करने के बाद एकदम से आंखें खुल गई, थोड़ा आगे से नींद सी नींद आ रही थी भाई के जिन्होंने कुंडली लिया है 40 सेकंड वाला, वो सबको आ रही है नींद, पढ़ने वाली सारे में सुस्ती, वो देखो बाबा जी सो रहे हैं। मेरे को तो रात को नींद नहीं आती, दिन में कहाँ आएगी जी? नहीं मतलब थोड़ा सा हो जाता है, नहीं ऐसे नहीं, पढ़ते टाइम सब कुछ भी नहीं हो है। रहा है, आप आइए। सब तो एक्टिव बंदे को नींद आती है। मैं भी यही करना। बस सर एक देख लो, बाकी बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठे बैठे दीजिएगा, चारों उंगलियां ऊपर होंगी और उठा पॉइंट के ऊपर ऐसे पकड़ने का है, और 1 2 3, फिर 1 2 3, गैप दे सकते हैं, एक बार भी आप 3 बार में रिपीट कर सकते हैं इसको, और इकट्ठे भी दे सकते हैं। करने के बाद ऐसे खींच देना चाहिए। सर्वाइकल के पॉइंट सीखे हैं तुम। सर्वाइकल के पॉइंट इस तरह ही सर्वाइकल में ये दिया जाता है, दिया जाता है। जिन पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं उनको नहीं दिए जाएंगे। सिर दर्द नहीं करता है, सिर दर्द है चलो सिर दर्द और आप में देखो दो कैसे किलो पेशेंट है। ये बहुत उन्होंने ये देना भी लोग दिया ये काम तो शुरू है, फोटो आ रही है। नहीं, मतलब इसको सभी करेंगे और उनको एक बार स्टेबल करता है। और सिर दर्द में तो बहुत अच्छा किसी को भी सिर दर्द होगा ना, तो सारे पॉइंट में दर्द नहीं होता, किसी एक पॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होगा। जब आप करेंगे, नेकलेस देंगे, तो वो पॉइंट आपको फाइंड आउट हो जाएगा। उसी पॉइंट को अच्छे से क्लॉकवाइज कर दीजिए, उसी टाइम सिर दर्द को कर देते हैं। चलिए पिछले ही क्लास में दसिया ਸੀ ਤੂੰ कितना प्रैक्टिकल किसी को भी सिर दर्द हो, अगर इस तरफ दर्द है तो शायद इधर ही वो पॉइंट ज़्यादातर मिलता है। हाँ जी, एक पॉइंट है जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो आप उसको रिलीज कर दीजिए, क्लॉकवाइज करके प्रेशर देके सिर दर्द उसी टाइम, मतलब जैसे आप लोगों को हटाया सिर दर्द। हाँ जी, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਰੇ ਹੀ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰੈਗੂਲਰ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ठीक है, बड़े आराम नाल साह, पेट जेड़ा बिल्कुल ना लगना चाहिए। दोबारा तो साह अंदर, कमर सीधी, 1 2 3 4, रिलैक्स। ਸਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੁੰਨੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ, 1 2 3
4 साह बाहर। लैग सारे अपनी अपनी सीधियां कर लो। हाथ पिछे एस पोजीशन दे विच। जिन्होंने सॉक्स पाई उतार दो। हाँ तुम तो ठीक हो। हाँ जी कंसंट्रेशन ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਖੋਲ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ठीक है ਸਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਸੰਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਅੰਦਰ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਕਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੀ। हाँ जी ਸਾਹ ਅੰਦਰ, ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨੀਆਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰੋ। ਕੰਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਿੱਛੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। हाँ जी पैर बाहर में स्ट्रेच करो। साह होल्ड कर लेना स्ट्रेचिंग से। हुण अंदर नूं जदों पैर स्ट्रेच करने आ, साह छड्ड देना, रिलैक्स। फिर तो इनहेल, स्ट्रेचिंग बाहर नूं, कमर सीधी होनी चाहिए है, पूरी तरह स्ट्रेचिंग। एक्सेल, स्ट्रेचिंग अंदर को। स्ट्रेचिंग बाहर को। इनहेल चंगी तरह ना कि थोड़े पैर अंदर नहीं जाए, चंगी तरह अंदर करो। हाँ जी अपने वालों स्ट्रेच करो। ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲਰ ਥੈਰੇਪੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਨਿਊਰੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਲਗਭਗ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ।